They are even said to be Six Sigma compliant. Now what is a dabba? A dabba is simply a tiffin box carrying home cooked food, which is to be delivered from the home to a person in an office or a school. And the dabba wala is a person who picks up the food from the home and ensures that it is delivered to the right office to the right person on time. नमस्कार, मेरा नाम रघुनाथ धोंडेवा मेदगे हूँ। मैं डब्बा वाला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी डब्बा का सर्विस 18 से 90 से शुरू है। हमारे टोटल 5000 मेंबर्स बम्बई में कार्यरत है। It all may sound fairly simple, but imagine doing this in one of the most densely populated cities in the world. The dabbawalas have high rates of accuracy and their error rates are shockingly 1 in a million only. And what is even more impressive, that all the dabbawalas are fairly illiterate and have no use of any technology. The only motorized transport used is the Mumbai local trains. Other than that, they make use of hand-drawn carts and bicycles. मेरी ग्रुप की साइकिल है, अंधेरी स्टेशन में छोड़ के जाता हूँ, तो मैं दूसरे ग्रुप की साइकिल डिलीवरी पॉइंट पे यूज करता हूँ और मेरी साइकिल वो लोग यूज करते हैं. The dabbas or the lunch boxes have a color coding scheme which makes sure that they get to the right destination. The structure of this organization is fairly flat. It has just 3 levels. First, the governing body. Second, the team leads or the supervisors. And third, the dabbawalas. And everyone is an equal shareholder in this organization. There are no bosses and the earnings are equally divided. हर एक बंदा का काम टीम के लिए करना है. अगर एक बंदा कम काम करेगा तो पूरी टीम की इनकम सोर्स लो हो जाती है. All the dabbawalas come from the same Warkari sect, and whenever any replacement is required, villages that have this Warkari sect are approached for suitable candidates. To join this organization as a dabbawala, the dabbawalas have to bring a few things: a long wooden crate, 2 bicycles, and ₹20 for a Gandhi cap that they wear. And how much do you think would it cost to avail of this very efficient dabba service? Less than $10 a month. While the operations are fairly simple, the dabbawalas are now beginning to work with newer technologies. You can SMS them or you can also log on to their site mydabbawala.com to avail of their services. अभी लंदन में भी प्रिंस चार्ल्स की शादी में जाकर आया हूँ. इटली में 2 बार जाने का मौका हमें मिला है. बहुत मैगजीन ने भी हमारी रिसर्च की थी, BBC ने भी डॉक्यूमेंट्री वहाँ बना के दी थी. हमारे ऊपर देखते हैं कि इनको क्यों ना 6 सिग्मा देना चाहिए. हमें तो पता ही नहीं 6 सिग्मा क्या है. And given their reach in Mumbai, Microsoft has also partnered with the dabbawalas. The dabbawalas distributed leaflets and wore Microsoft branded clothes to spread awareness of genuine Windows softwares to their customers. 5000 बम्बई के डब्बे वाले 4 लाख टिफिन का ट्रांजैक्शन पर डे लोकल ट्रेन से, साइकिल से और मैन पावर की वजह से कर रहे हैं. ओके. Thank you. Good afternoon everybody. थोरांना दंडवत, मान्यवरास सप्रेम नमस्कार आणि लहानग्यांना शुभ आशीर्वाद. कळलं का इंग्रजीमध्ये सांगू? प्रणाम टू एल्डर्स, गुडविल टू कलिग्स एंड लव टू यंगस्टर्स. आज हमें स्नेह जल्लोष शिरडी रोटरी कॉन्फ्रेंस 2020 में बुलाकर जो हमारा व्यवस्थापन जानने के लिए आप सभी आतुर होंगे. आज के प्रोग्राम के आदरणीय रोटरियन ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, देवी और सज्जनों, सबको मुंबई डब्बावाला की तरफ से आपके भावी लाइफ के लिए शुभेच्छा और सदिच्छा. और रोटरी क्लब के बारे में कहना चाहता हूँ, मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती. मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती. होने दो दुनिया में बहुत सारे रोटरी कॉन्फ्रेंस, फिर भी रोटरी कॉन्फ्रेंस 2020 की वैल्यू कम नहीं होती, वैल्यू कम नहीं होती. सबसे पहले प्लीज पीपीटी ऑन करो सर. सबसे पहले वंदनीय गणेश जी को, आदरणीय ज्ञानेश्वर को वंदन करते हुए जो हमारे मुंबई डब्बावाला का व्यवस्थापन है उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ. हमारा संस्था का नाम है मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडल. जिन्होंने टर्बन पहने हमारे फाउंडर मेंबर महादेव जी बच्ची है और उनके बाजू में मेरे पिताजी धोंडीवा मेदगे. और मैं खुद 1974 से बम्बई में आज भी बम्बई का डब्बे का डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, यानी 3rd जनरेशन में हमारा काम चल रहा है. मैं ज़रा आपको रोज़ हम डब्बे
लोकल ट्रेन से डिलीवरी करता है, मगर आज मुझे समय बहुत कम दिया है प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए आपको बुलेट ट्रेन से भगाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। सर क्या हो रहा है? सॉरी सर, नहीं प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए हम डब्बे वाले टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते नहीं। फिर ऐसा टेक्नोलॉजी भरोसा रखेंगे तो लंच का डब्बा डिनर तक भी नहीं डिलीवरी हो जाएगा। क्या हो रहा है सर? नहीं नहीं, जरा प्लीज देखो, फर्स्ट स्लाइड देखो प्लीज। हाँ ओके ओके। जिन्होंने थर्ड जनरेशन से हम बम्बई में डब्बे का काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है सर? प्रॉब्लम हो रहा है। हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1890। 1890 से हम लोग डब्बे का डिलीवरी का काम बम्बई में कर रहे हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी है ही। 1890 में अपने इंडिया के ऊपर अंग्रेज लोगों ने राज किया। अंग्रेज लोग इंडिया बिजनेस करने आए, उनके साथ बहुत सारे डच, पोर्तुगीज, पारसी लोग आए। इंडिया का डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था और अंग्रेज लोगों ने बम्बई का भी डेवलपमेंट का काम शुरू किया था 1890 में, जैसे कि रेलवेज हो, रोड्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो। और उसके साथ साथ अपने इंडियन में वो डेवलपमेंट के काम में शामिल होकर काम में जुड़ रहे थे। और जहाँ भी इंसान को हार्ड वर्क करना होता है वहाँ लंच का खाना जरूरी होता है। और उस टाइम आज जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट बम्बई में थे नहीं। 7 बेटों की बम्बई और 3.5 गाँव की बम्बई, और एक पारसी हाउस वाइफ विदेश से इंडिया आई और उन्होंने गिरगांव में एक प्लेस भाड़े से लेकर 100 डब्बे लंच के बनाने का रखने का बिजनेस शुरू हुआ। और ऐसे 100 डब्बे लंच के वो बनाकर रखती थी। और हमारे फाउंडर मेंबर महादेव जी बच्चे बम्बई के जो 3.5 गाँव, गिरगांव, नायगांव, माझगांव और आधा गाँव गाँव देवी, वो 3.5 गाँव में डब्बे की 100 डब्बे की डिलीवरी बिजनेस ऐसा शुरू हुआ। अंग्रेजों का ज़माना था। 1890 में हमको डब्बे का डिलीवरी की शुरुआत की थी। हम कभी भी प्यार से कहते हैं हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर तो नहीं है, मगर डब्बे वाले जरूर है। ऐसे हमारे डब्बे की शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने से हो चुकी है। रजिस्टर इन 1956। आप सोचेंगे बिजनेस इतना जल्दी शुरू हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों देरी से शुरू हुआ? इंडिया परतंत्र होने के कारण हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए। एज ग्रेड स्कूलिंग, नीचे हमारे टोटल जो 5000 डब्बा वाला एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, उनमें से 2000 डब्बा वाला थम्सअप है। थम्सअप यानी मैं कोई कोल्ड ड्रिंक से ऐड नहीं कर रहा हूँ। थम्सअप यानी जो साइन की जगह थम्स लगाते हैं। जो लोग एक दिन में स्कूल में नहीं जा सके हैं, ऐसे लोग मैं संभाल रहा हूँ। और बाकी 3000 लोग हैं, 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, 3री फेल है, ऐसे 5000 लोग मैं आराम से क्यों संभाल रहा हूँ? वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई टेंशन नहीं देते मुझे, आराम से मैं उसे हैंडल करता हूँ। 5000 लोग में आराम से हैंडल। एक आदमी बोलेगा तो 99 आदमी सुनते हैं हमारे आज भी। डिसिप्लिन में हम लोग वारकरी सेक्ट के लोग हैं। एक आदमी बोलेगा तो 99 आदमी सुनते हैं, मगर आजकल ज़माना उल्टा चल रहा है। 99 आदमी बोलेंगे तो भी एक आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे 130 साल से थर्ड जनरेशन से हम बम्बई में डब्बे का डिलीवरी का काम कर रहे हैं और कोई मुझे टेंशन नहीं देते। पढ़े लिखे लोगों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग संभालने के बहुत ईजी होते हैं, क्यों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज दैट एंड दिस इज व्हाट। काम कम बातें ज़्यादा होती है, ये हमारे डब्बे वाले करते नहीं है। टोटल बम्बई में 70 लोकल स्टेशन है। वेस्टर्न रेलवे का रेलवे रूट है विरार टू चर्चगेट हो, सेंट्रल रेलवे का रेलवे रूट है कल्याण टू सीएसटी हो, हार्बर रेलवे रूट का है नई बम्बई से ओल्ड बम्बई हो। तीनों रेलवे रूट मिल चुके हैं। 70 स्टेशन में हमारे टोटल 5000 डब्बा वाला 2 लाख कस्टमर से घरों से डब्बा कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में। और डेस्टिनेशन आपका 70 स्टेशन में कहाँ भी हो, सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर रेलवे रूट में, वहाँ आपका लंच का डब्बा लंच टाइम 12:30 का ही होता है। 12:30 के पहले 2 लाख डब्बे, 5000 डब्बे वाले 70 डेस्टिनेशन स्टेशन पे, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो अपने कोई किसी की तो ये नहीं करते हैं। कभी अम्ब्रेला यूज नहीं करेंगे, रेनकोट नहीं मांगेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे और अपने बम्बई में अपने कस्टमर के कस्टमर सेटिस्फैक्शन देने के लिए दौड़ती ही बम्बई के साथ दौड़ते हैं। इतना बढ़िया हमारा नेटवर्क हो रहा है। और जो करते हैं घरवाली से प्यार, क्यों करेंगे डब्बे वाले से इनकार? जो अपनी घरवाली होती है वो तन मन लगन से खाना बनाकर रखती है
अपने पर्सन को क्या कल दिया था आज का देना चाहिए, क्या देने से बंदा खुश रहेगा, अच्छा जॉब करेगा, अच्छी सर्विस करेगा, वो घरवाली सोचती है। वेटर जैसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए हमारे 4 लाख टिफिन के ट्रांजैक्शन, पब्लिक हॉलिडे और संडे छोड़ के हमारे 5000 बम्बई के डब्बे वाले 800 टीम में नेटवर्क करते हैं। टाइम टेकन 3 आवर्स। 3 आवर्स कोई भी खाना फ्रेश रहता है। घर में अगर 9 साढ़े 9 बजे खाना बना के देंगे तो 12:30 तक फ्रेश ही खाना होता है, इसलिए हम 3 आवर्स में लंच का डब्बा डिलीवरी करते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे इस वहाँ से जरा प्लीज, ये जरा प्रॉब्लम है इसमें कुछ। हाँ नेक्स्ट करो, मैं बोलेगा तो आप ना। ये 26 जनवरी हम बम्बई के डब्बे वाले की टीम दिल्ली में गई थी। हर एक स्टेट का चित्र बनाया जाता है हर एक गवर्नमेंट द्वारा। महाराष्ट्र स्टेट ने हमारे 20 डब्बा वाला की टीम 26 जनवरी 2010 में इंडिया गेट दिल्ली में लेकर गए थे। हर एक स्टेट का कौन सा महत्वपूर्ण जॉब होता है वो दिखाने का प्रयास हर एक स्टेट करते हैं। और जितने भी टोटल स्टेट्स है इंडिया के, 26 जनवरी 2010 में मुंबई डब्बा वाला के माध्यम से फर्स्ट प्राइज देने का सौभाग्य मुंबई डब्बा वाला के माध्यम से महाराष्ट्र स्टेट को मिला था। ऐसे हमारा नेटवर्क देखने के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, सेमिनार देखने के लिए इंडिया के लोग वहाँ आए थे और ऐसा फर्स्ट प्राइज हमने महाराष्ट्र स्टेट को दिलवाया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स है। बाकी वो स्ट्रक्चर तो सभी सेम ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मगर लास्ट वाले 2 पॉइंट हमारे अलग है। हमारे टोटल 5000 डब्बा वालाज है। 5000 डब्बा वालाज के 800 टीम्स है और जो टीम से जो टीम लीडर है उसको हम बॉस, सर, कैप्टन नहीं कहते, उनको मुकादम कहते हैं। 800 टीम के 800 मुकादम अपने ग्रुप को मैनेज करते, हैंडल करते और बढ़िया ढंग से नेटवर्क करते हैं। और मुकादम का मीनिंग तो एकदम ईजी है। मुकाने बिना बोलने वाला, 2 महीने 10 से काम करके लेने वाला, ऐसे टीम लीडर को हम मुकादम कहते हैं। ऐसे 800 टीम आपने मुकादम अपने टीम को हैंडल करके बढ़िया नेटवर्क करवा लेते हैं। मेरे नेक्स्ट रिवर्स लीजिए प्लीज। बाजू में जो धीरूभाई अंबानी का बीकेसी में स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल में बड़े बड़े एक्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, डायरेक्टर उनके लड़के पढ़ते हैं। नीता अंबानी ने मुझे डब्बा वाला थीम दिखाने के लिए गैदरिंग प्रोग्राम में कि डब्बे वाले कैसे नेटवर्क करते हैं, मेरे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देके मुझे गैदरिंग प्रोग्राम में डब्बे वाले का सिस्टम दिखाना है, नेटवर्क दिखाना है, और नीता अंबानी ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट, ये मुझे स्विट्जरलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन में मुझे लेके गए थे। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में प्रेजेंटेशन में तो जाता हूँ, मगर केजे सोमैया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उनके 2 डायरेक्टर स्विट्जरलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन मुझे लेकर गए थे और वहाँ वर्ल्ड के 16 स्पीकर थे। 16 स्पीकर में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक प्रोफेसर थी और मैं मुंबई का डब्बा वाला। हमारी कंपटीशन उन्होंने लगाई थी स्विट्जरलैंड ज्यूरिच शहर में, और कि बम्बई के डब्बे वाले 0% टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी 99% एक्यूरेसी अपने काम में लाते हैं रोज के रोज। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट 100% टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी 99% एक्यूरेसी अपने स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकते। और ऐसे कंपटीशन वहाँ लगाकर 8 दिन मैंने टॉप ऑफ यूरोप देखकर आपकी दुआ से, साईं बाबा की दुआ से हम लोग जाकर आए हैं। और ऐसे हमारे कॉन्फ्रेंस वहाँ तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही होता नहीं है। एक हेडफोन लगाने से 7 लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है। जापानीज अलग है, लंदन जर्मनी अलग है, इटालियन अलग, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता था। ऐसे ज्यूरिच सिटी में मैं जाकर आया हूँ। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन, एरर रेट 1 in 16 million ट्रांजैक्शन। आप अगर कोई बम्बई में आएंगे, डब्बा वालों को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, अरे डब्बा वाला भाइयों व्हाट इज एरर, डब्बा वाले आपको हाथ जोड़ के जवाब देंगे, सर वी डोंट नो व्हाट इज एरर बट समबडी सेज एरर इज हॉरर एंड डोंट लुक इन द मिरर। इतना डेफिनेशन एरर के बारे में जानते हैं, इसलिए बाकी दुनियादारी देखते नहीं। फास्ट करो। 6 सिग्मा परफॉर्मेंस बाकी तो आप सब इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आपको अभी टाइम बहुत कम दिया है। टेक्नोलॉजी बैकेट में टेक्नोलॉजी अच्छी है, मगर पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छी है। जो थम्सअप पर्सन और टेक्नोलॉजी के क्या जानेंगे, बस हम डब्बे वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अपने माइंड को सुपरमैन मानने लगे, अपने माइंड को कंप्यूटर समझते। वो माइंड कभी फेल होना नहीं चाहिए, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो सही ढंग से चलना चाहिए। शेख भाई का डब्बा शेख भाई को जाना चाहिए, जैन भाई का डब्बा जैन भाई को जाना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरे के पूरे 5000 डब्बा वाले सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक अपने कंप्यूटर कवर पहनते,
ये हमारा कंप्यूटर है, अरे हमारा कंप्यूटर कवर है, ये कवर पहनने से कोई गलती होती नहीं है, कोई मिस्टेक होती नहीं है। और ऐसा हमारे पूरे के पूरे डब्बे वाले कंप्यूटर को टोपी पहनते। हमारी टोपी हम 1890 से पहनते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल सर ने अन्ना हजारे को लेके आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली तक हमारे टोपी पहुंचा दी गई है, मगर हमारे डब्बे वाले ऑन ड्यूटी टोपी पहन के काम करते हैं। जो डब्बा वाला विदाउट टोपी काम करेंगे उसको 50 रुपीज़ हम फाइन करते हैं। टोपी एक हमारी पहचान बन चुकी है और टोपी की वजह से हमारे ऐड का खर्चा बच जाता है। कोई भी हम कॉलोनी में जाते हैं टोपी पहन के, कोई भी बॉस सुबह बोल के जाते कि देखो वॉचमैन आपने सोसाइटी में कॉलोनी में कोई डब्बा वाला टोपी पहन के आएगा, उसको बोले मेरा नया टिफिन शुरू करना है। वो टोपी की वजह से वॉचमैन उसको पहचान लेते हैं, उसको नया कस्टमर मिलता है। टोपी पहनो, ऐड का खर्चा बचाओ। न्यूज़ देने के बाद कोई टीवी चैनल में न्यूज़पेपर नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोपी की वजह से उसको नए नए कस्टमर मिलते हैं, इसलिए टोपी पहन के हम लोग काम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस डब्बे वाले को डिलीवरी चार्जेस है 1200 यानी स्पेस वेट डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग कॉस्ट हम करते हैं। टोटल डब्बे वाले का टर्नओवर 50 to 55 करोड़ तक पहुंच गया है। नो स्ट्राइक रिकॉर्ड इच वन ए शेयर होल्डर अर्निंग। हर डब्बा वाला हम वर्किंग पार्टनर है, शेयर होल्डर है। स्ट्राइक हम करते नहीं है, स्ट्राइक में सुसाइड समझते हैं। स्ट्राइक करने से क्या हाल देखा, मैंने खुद ने देखा है कि डॉक्टर दत्ता सामंत जी ने 64 कॉटन मिल का स्ट्राइक किया 82-83 से, अभी तक 64 कॉटन मिल का स्ट्राइक चल रहा है। उनके कितने कामगार बेरोजगार बन गए और हमारे 500 डब्बे वाले घरदार बेच के गांव चले गए। स्ट्राइक में सोसाइटी समझते हैं, इसलिए स्ट्राइक के लिए किसको बहकाना नहीं चाहिए। आप अगर काम में बोर हो जाते हो 2 महीना गांव में छुट्टी लेके जाइए, फ्रेश होके जॉब करके फिर से जॉब में जुट जाइए, मगर स्ट्राइक के लिए बहकाना नहीं चाहिए। स्ट्राइक में सुसाइड समझते हैं। भगवान ने इंसान को खाली 100 वर्ष की उम्र दी है, 100 साल उम्र दी है। अभी मिलावट का ज़माना चल रहा है, अभी 60-70 तक आ चुकी है, ओरिजिनल खाना मिलता नहीं है। 20-25 साल पढ़ने में बचपन में चले जाते, 20-25 साल बुढ़ापे में चले जाते। बिजनेस जॉब सर्विस कितने दिन करनी है, हर एक इंसान ने सोचना चाहिए। 20-25 साल ने अपनी लाइफ बनानी है, अपना घर बनाना है, अपना परिवार जगाना है, यही हम सोचते हैं, इसलिए हम कभी स्ट्राइक नहीं करते। नेक्स्ट कीजिए, अभी बहुत टाइम कम है। आवर बिलीफ वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी एज गॉड। काम करते समय हम जो 40 डब्बे का वेट बकेट उठाते हैं ट्रेन में लोड अनलोड करने के लिए, उसका वेट 60 to 65 kg होता है, 50 to 55 kg सॉरी। और वो इतने हार्ड वर्क में बम्बई की लोकल ट्रेन 10 सेकंड भी प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, मगर हमारे डब्बे वाले ने एक सिस्टम बना के रखी है। 10 सेकंड में 10:30 की ट्रेन पकड़ना ही पकड़ना है। अगर वो ट्रेन मिस हो जाएगी तो 12:30 का लंच टाइम मिस हो सकता है। इसलिए पूरे के पूरे सिस्टम हमने बना के रखी है। जो ट्रेन बोरीवली से शुरू होती है वो टीम को हमने लगेज को हर ट्रेन को 3 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं, उनको वार्निंग दे वही लगेज से वही ट्रेन से सफ़र करो। आगे वाले कांदिवली मलाड लोड अनलोड करने के लिए हेल्प करो। सब लोग साथ में मिलजुल के जाएंगे तो ही सप्लाई चेन सक्सेसफुल होने वाली है। इसलिए जो ट्रेन थाना से शुरू होती है वो आगे घाटकोपर प्रिक्योर वाले को मदद करते हैं। और पूरे के पूरे डब्बे वाले 10:30 से 11:30 बजे तक टूअर्स चर्चगेट हो, टूअर्स विरार हो, टूअर्स कल्याण हो, टूअर्स CST हो, यही टाइम पे ट्रैवल करते हैं। और ट्रेन में बढ़िया से, और बम्बई की जो लाइफ लाइन है वो लोकल ट्रेन है। मैं वर्ल्ड के 16 कंट्री में जाकर आया हूँ प्रेजेंटेशन के बहाने, मगर बम्बई की जो लोकल ट्रेन सुविधा है ऐसी किसी शहर में नहीं है। ओवरलोड पॉपुलेशन है, ओवरलोड ट्रैफिक है, और बम्बई की लोकल ट्रेन उसको साथ देती है, इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा चल रहा है। हम डब्बा कलेक्ट करने के लिए साइकिल यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन जाके डिलीवरी के लिए भी साइकिल यूज़ करते हैं। साइकिल इतना बढ़िया व्हीकल है, आज तक इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस कंपलसरी किया नहीं है। साइकिल खरीदने के RTO रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बम्बई में मेट्रो का ट्रेन का शुरू हुआ, बहुत हम परेशान हो चुके, पूरे बम्बई वासी परेशान है, मगर साइकिल इतनी बढ़िया व्हीकल है। लाइसेंस नहीं, इसलिए हम नो एंट्री में घुस सकते हैं। लाइसेंस नहीं तो नो एंट्री में घुस सकते हैं, सिग्नल तोड़ सकते हैं, फुटपाथ से जा सकते हैं। और बम्बई की जो पुलिस है, रेलवे पुलिस हो, सिटी पुलिस हो, RTO पुलिस हो, मेन नज़र से देखती है कि अगर डब्बे वाला डिसिप्लिन तोड़ने से मैं अगर टाइम बर्बाद करूं, उसकी ट्रेन निकल जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। उसे 40 डब्बे में अनाज होता है,
अनाज प्रॉब्लम में होता है, वो डब्बा वाला यहाँ रुकेगा तो उसके 40 डब्बे ऐसे कचरे में फेंकना होगा। भगवान भी शायद मुझे छोड़ेगा नहीं, अनाज का ये खराब होगा तो वो मन में जा उसकी साथ उठते हैं और अपने डब्बे वालों को छोड़ देते हैं। और इसलिए बढ़िया नेटवर्क और साइकिल चलाने से 0% फ्यूल, इससे 0% पोल्यूशन है, 0% इन्वेस्टमेंट है, 0% मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 0% डिस्प्यूट्स है, 99% जो परफॉर्मेंस है केवल डब्बे वाले से हार्डवेयर से हमें मिला नहीं है। साइकिल का भी बड़ा इसका योगदान है। और तीसरा एक कारण है बम्बई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। तीनों को कॉम्बिनेशन अगर बिगड़ जाएगा तो पूरा डब्बा वाला बिजनेस सिस्टम फेल हो सकती है। इसलिए जो भी हमें 6 सिग्मा दिया गया है वो 6 सिग्मा अकेले हम डब्बे वाले लेना नहीं चाहते थे, उनमें से 2 सिग्मा पहले लोकल ट्रेन को जाना चाहिए था, 2 सिग्मा बाइसिकल को जाना चाहिए था, सिर्फ 2 सिग्मा डब्बे वालों को टीम को हार्डवर्क को मिलना चाहिए था। मगर करे क्या, लोकल ट्रेन साइकिल डब्बे वाले से झगड़ा नहीं कर रही है, इसलिए पूरा 6 सिग्मा डब्बे वालों को मिल चुका है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये डॉक्यूमेंट्रीज मेड बाय BBC, UTV, MTV, A to Z टीवी चैनलों डब्बे वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। हमें भी चिंता नहीं, हमारे जो सीक्रेट है बिजनेस का पूरे वर्ल्ड के सामने हम खुला हम बोल देते हैं। मुझे तो बड़े बड़े कंट्री में बड़े बड़ी कंपनी प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाते हैं, मैं उनको ऐसा ही बोलता, क्यों मुझे लेके जाते हो ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर है। अरे मुझे मोटिवेशन का मीनिंग तक आज तक पता नहीं है, मुझे क्यों लेके जाते हो। तो मैं 16 कंट्री में बड़ी बड़ी कंपनी टाटा, मर्सिडीज बेंज सब मुझे लेके जाते हैं। नहीं ना, आपका बिजनेस का फंडा हमारे स्टाफ को, हमारे HR लोग को आप समझाएंगे, मैनेजमेंट को समझाएंगे, उसकी मोटिवेशन बढ़ती है। मैं ऐसे उनको मजाक में बोल देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को किसने मोटिवेशन दिया होगा, एक्टर अमिताभ बच्चन को किसने मोटिवेशन सिखाया होगा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किसने मोटिवेशन दिया होगा, आदरणीय सिंगर लता मंगेशकर किसने मोटिवेशन दिया होगा। हर एक के दिल से मोटिवेशन होना चाहिए। मैं यहाँ 2 घंटा बातें करूँ, आप बाहर जाके भूल जाएगा तो मेरा मोटिवेशन स्पीच का क्या मीनिंग होता है। इसलिए रखो भरोसा खुद पर, रखो भरोसा खुद पर। क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, आसमान के पास पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने अपने जीने के रास्ते, अपने अपने जीने के रास्ते। ऐसे में इसको अपने बड़े मोटिवेशन स्पीच पे बड़े बड़े कंपनी के सामने देना चाहता हूँ। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ पंख होने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ पंख होने से कुछ होता नहीं। उड़ाने भरने के लिए पंखों में जान होनी चाहिए, वही जान हर एक के दिल से स्फूर्ति होनी चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। ऐसे मेरे कहने से आपका स्पिरिट बढ़ने वाला नहीं है, ऐसे मैं उसको कहा था। नेक्स्ट कीजिए। ये कोडिंग सिस्टम मैंने बनाई है, इन शॉर्ट बोलता हूँ, ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, ऐसे तो मेरे प्रेजेंट 2-2 घंटा जाते हैं। पहले हमारे जो फाउंडर मेंबर ने डब्बे का बिजनेस शुरू किया था तो कलर टैग, कलर थ्रेड यूज़ करते थे। फिर ऑयल पेंट का जमाना है, फिर +, राउंड डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसे कुछ स्क्वायर सिंबल यूज़ करने लगे। फिर मैं जब 1974 में ओल्ड SSC पास करके, मेरे पिताजी का बिजनेस 1930 से वो पार्ला में कर रहे थे, मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तो रेलवे के इंडिकेटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, और वो लकड़ी के पट्टे पे फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन लिखा करते थे लोकल ट्रेन के लिए, और वो इंडिकेटर इलेक्ट्रॉनिक्स बनने जा रहे थे। मैं देख रहा था, मेरी सोच बदल गई। अगर T फॉर थाना हो सकता है, C फॉर चर्चगेट हो सकता है, B फॉर बांद्रा हो सकता है, BO फॉर बोरेली हो सकता है, क्यों ना मेरे डब्बे वालों के रेसिडेंशियल स्टेशन के लिए इनिशियल विले पार्ला लिखने के जगह मैं VP लिख सकूं। तो मैं सब डब्बे वालों को जो मराठी में कोडिंग था उसके ऊपर मैंने हार्ड कलर, डार्क कलर लेके उनका कोडिंग ऐसा रखा, क्योंकि थम्स अप पर्सन जो बेचारे इतने जल्दी सीखने वाले नहीं थे, तो मैंने डार्क कलर करके उसके ऊपर इंग्लिश कोडिंग, उस पुराना कोडिंग मराठी में था और नया कोडिंग मैं इंग्लिश में उसके ऊपर करा था। जो कि मेरे कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन विले पार्ला है, तो मुझे VP लिखना जरूरी। डब्बा अगर कहाँ भी 70 स्टेशन में जाएगा तो दोपहर को रिटर्न जर्नी में डब्बा पार्ला स्टेशन आना चाहिए। विले पार्ला स्टेशन में समझो मेरे टीम में 25% काम कर रहे हैं, 5% हम लोग सब्सटीट्यूट रखते हैं, 20% डब्बा कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में 9 से 10 बजे। जो पहला डब्बा वाला नेहरू रोड गुजरात सोसाइटी से 40 डब्बे कलेक्ट करके विले पार्ला स्टेशन 10 लेके आएगा, उसको ये अल्फ़ाबेट रूट है। सेकंड डब्बा वालों को B है, थर्ड वालों को C है, ये अल्फ़ाबेट है। वो हनुमान रोड से 40 कस्टमर के लंच के डब्बे विले पार्ला स्टेशन रेलवे स्टेशन तक साइकिल पे कलेक्ट करके लाएगा, उसको ये अल्फ़ाबेट है। अभी समझो ये अल्फ़ाबेट पर्सन के पास 40 डेस्टिनेशन के डब्बे होंगे,
बम्बई में टोटल 70 डेस्टिनेशन स्टेशन है, सभी थोड़ी एक ही डेस्टिनेशन पे जॉब करेंगे, हर एक कस्टमर का अलग डेस्टिनेशन पे जॉब बिजनेस सर्विस हो सकती है। जो पोस्टल पिन कोड नंबर है वो मेरे माइंड में आइडिया थी, मैंने पूरे स्टेशन को नंबर्स दे के रखे हुए हैं। 1 to 10 नंबर मैंने चर्चगेट के दिए, 1 फॉर चर्चगेट, 2 फॉर बैलाटपेट, 3 फॉर नरीमन पॉइंट, 6 फॉर CST, 10 फॉर गेट ऑफ इंडिया, 11 फॉर मरीन लाइन। जो 3 नंबर है वो कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन है, विले पार्ला कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन है। ये पर्सन घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है मॉर्निंग में और नरीमन पॉइंट पे जाएगा तो 3 नंबर है, और वहाँ जाएगा तो विले पार्ला से एक पर्सन 3 नंबर के विले पार्ले में 3 टीम काम करती है, रेड, ब्लैक और ब्लू। तीनों टीम कंपटीशन में लड़ती है मॉर्निंग में और इवनिंग में, मगर 10:30 से 2:30 बजे तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो पूरी सप्लाई चेन फेल भी हो सकती है। 4 लाख टिपिंग का ट्रांजैक्शन, 70 डेस्टिनेशन स्टेशन की डिलीवरी कैसे हो सकती है? तो हम सब कंपटीशन साइड में रखते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। मेरे टीम के 20% मल्टीप्लाई 40 डब्बा 800 डब्बे ग्रीन कलर के हो जाते, दूसरे टीम के 20% मल्टीप्लाई 40 डब्बा उनके 800 डब्बे रेड कलर के हो जाते, तीसरे टीम के ब्लू कलर के 20% 800 डब्बे, तीनों टीम के 60%, तीनों टीम के 2400 डब्बे सब मिक्सअप हो जाते। 10-15 मिनट में सॉर्टिंग होती रेलवे स्टेशन पे। समझो मैं ये पर्सन हूँ तो मुझे नरीमन पॉइंट का जॉब दिया जाएगा डिलीवरी करने के लिए। मैं सिंगल ही पर्सन तीनों टीम के रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के 40 डब्बे में बकेट में लोड करके विले पार्ला से ट्रेन पकड़ के 11:30 की ट्रेन एरोस थिएटर पहुँचना है। दूसरा लोअर परेल जाएगा घाट को 60% 60 डेस्टिनेशन स्टेशन पे डब्बे लेके जाते। वहाँ मैं अकेला नरीमन पॉइंट में तो 12:30 के पहले डिलीवरी कर नहीं पाऊंगा, मुझे अंदर से एक पर्सन 40 डब्बे ज्वाइन हो जाएगा जोगेश्वरी घाट को पर 60 स्टेशन से 60 डब्बा वाला मुझे आके मिलते हैं। वहाँ रेड कलर से कोडिंग किया गया है, जैसे डब्बा कलेक्ट करने के लिए ABCD अल्फ़ाबेट रूट है, ऐसे 60% के लिए डिलीवरी 1 to 60 नंबर दे चुका हूँ, वो रेड कलर से किए जाते हैं। जो 9 नंबर है वो मेरा डिलीवरी नंबर है, मेरी 9 नंबर की साइकिल होती है वहाँ पार्किंग में। मैं 9 नंबर के पास मेरे 3 नंबर के पार्ला से जो रहने वाले मगर 9 नंबर के लंच खाने वाले मेरे रूट में मैं 3 डब्बे मेरे साइकिल के पास रखूँगा, बाकी 37 डब्बा मुझे 37 साइकिल के पास छोड़ने हैं। वो दूसरे 60% को पता है मैं 9 नंबर का डिलीवरी पर्सन हूँ, वो मेरे 9 नंबर के डिलीवरी जितने भी डब्बे वो 10 मिनट में मेरे साइकिल के पास पहुँचते हैं। यानी मेरा रूट इन शॉर्ट बन जाता है, 4-5 बिल्डिंग में डिलीवरी रूट हो जाता है। तो मेरा 9 नंबर का डिलीवरी रूट होगा एक्सप्रेस टावर मेरे बिल्डिंग में, समझो बिल्डिंग है मेरे नरीमन पॉइंट में, तो एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग में मुझे डब्बा डिलीवरी करना है, कौन से फ्लोर में देना है तो 12 फ्लोर नंबर है। नेक्स्ट कीजिए आगे, कुछ थोड़ा एग्जाम्पल मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ। वो ब्लैक कलर शेड का टीम कलर, जैसे IPL क्रिकेट टीम का ड्रेस कोड अलग कलर शेड्स होता है, ऐसा मेरे डब्बे का भी कोडिंग का कलर शेड अलग किया गया है। विले पार्ला का कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन है, ये पर्सन डब्बा घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है। 3 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन चर्चगेट में नरीमन पॉइंट के लिए, नरीमन पॉइंट डब्बा डिलीवरी होने के बाद 5 नंबर का डब्बा वाला अपने रूट में कलेक्ट करके एयर इंडिया बिल्डिंग में 12वें मंजिल में लंच के लिए पहुंचता है। आगे वाला ग्रीन कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है, D नंबर का डब्बा वाला मॉर्निंग में घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है। घाट के ऊपर कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का। 13 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन वेस्टर्न रेलवे में चेरनी रोड के लिए। चेरनी रोड डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डब्बा वाला अपने साइकिल पे कलेक्ट करके पंचरत्न बिल्डिंग में 9 फ्लोर लंच का डिलीवरी। इतने आसान कोडिंग सिस्टम है, बार कोडिंग क्या, डी कोडिंग क्या, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। और इसके आगे भी जाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्टैमिना तो स्ट्रांग होता है मगर मेमोरी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? पढ़े लिखे लोग नोट कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग फीड कर सकते हैं। जो थम्सअप पर्सन है वो नोट भी नहीं कर पाते, फीड भी नहीं कर पाते, वो बैठ करके काम चला लेते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और भगवान ने भी किसको ताकत दे के रखी, भगवान ने देखो इंसान को कैसा जन्म दे के रखा है। जो ब्लाइंड पर्सन होते ना, ब्लाइंड, उसको ज़्यादा सुनने की ताकत दे के रखते, और जो सुनने में कमज़ोर होते उनको देख तेज नजरिया दे के रखिए, उसके सहारे वो ज़िंदगी जी पाए। ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती कम होती जा रही है, अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसे भरोसे पे हम काम चला रहे हैं। नेक्स्ट, मेरे पास MBA BMS होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट प्रोजेक्ट करने के लिए आते, उन्होंने फ्लो ऑफ लॉजिक बना। डब्बे वालों को कुछ पता नहीं उसके बिजनेस क्या फ्लो चल रहा है और क्या लॉजिक हो रहा है। आगे डब्बे, नेक्स्ट कीजिए। बहुत अभी आपको बुलेट ट्रेन से भगाना पड़ रहा है, सॉरी। ये डब्बे की साइकिल है, 40 डब्बे हम कैसे लो ऑन करते हैं, लो कॉस्ट
डब्बा डिलीवरी करने के लिए नो पेट्रोल के दाम बढ़ते तो हमें कुछ चिंता नहीं है। ट्रैफिक का रूल साइकिल बचा लेती है, ट्रैफिक बचाते तो साइकिल के 40 डब्बे हम कैसे लोड करते हैं उसके एक सिस्टम आप देख सकते। नेक्स्ट, ये लोकल ट्रेन की 10 सेकंड भी प्लेटफॉर्म लोकल रुकती नहीं है, और वही 10 सेकंड में जो पहले डब्बे वाले आगे से स्टेशन से आते बोरेवली से, वो दरवाजे पे रेडी पोजीशन में खड़े रहते बकेट पकड़ने के लिए, पीछे वाले उनके टीम के लेके मिडल पर्सन खाली बकेट लेके खड़ा रहता है, और ऐसे 10 सेकंड में पूरे के पूरे 5000 डब्बा वाला 2 लाख कस्टमर के डब्बे 10:30 से 11:30 बजे तक पूरी डिलीवरी हो चुकी, पूरे 70 स्टेशन पे होती है। इसलिए 12,000 कोच है, 12 कोच ट्रेन है, 4000 कम्यूटर्स है, 8000 डिस्ट्रीब्यूट्स है, बट नो एक्सी 25 डब्बे वाले की रोज ड्यूटी हो रहे। नेक्स्ट, ये लगेज कंपार्टमेंट हम यही टेंशन में लगेज डब्बे जा रहे, और टाइम भी दिया लोकल ट्रेन बिटवीन 10:15 AM to 11:15, यही टाइम पे हम टुवर्ड्स चर्चगेट हो, टुवर्ड्स कल्याण हो, टुवर्ड्स CST हो, टुवर्ड्स विरार हो, वही टाइम पे हम डब्बे डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट, ये चर्चगेट स्टेशन के बाहर पूरे के पूरे बम्बई के डब्बे वाले आ चुके हैं, 10-15 मिनट में सॉर्टिंग करते, कोई हाथगाड़ी पे डिलीवरी करते, सीनियर सिटीजन होते, जो यंगस्टर होते वो साइकिल पे लॉन्ग डिस्टेंस के डब्बे डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट, ये रिटर्न जर्नी एम्प्टी डब्बे हम लेके वापस 1:15-2 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर आते हैं, VT स्टेशन से बाहर आते हैं, और हर एक के दिल में डर होना चाहिए, मैं अच्छा नेटवर्क कर रहा हूँ तो आपको भी अच्छा नेटवर्क करना चाहिए, आप अच्छे जॉब कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा जॉब करें, ये टीम वर्क होता है। अगर मैं आपके कस्टमर को गलत जगह रखूँ डब्बा, कोई मिस्टेक करूँ, तो आपका कस्टमर आपको फ़ोन करके बोलेंगे, देखो आज कौन डब्बे वाला मेरे ऑफिस में आया था, उन्हें मुझे लेट डब्बा दिया, तो मैं 2 से 2:30 बजे रेडी पोजीशन में रहता हूँ झगड़ा करने, देखो तूने मेरे कस्टमर का डिले किया है, प्रॉब्लम क्या है, मैं कल आपके कस्टमर को डिले करूँगा, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम करूँगा। हर एक के दिल में डर होती है, इसलिए बढ़िया ढंग से नेटवर्क हो रहा है। नेक्स्ट कीजिए, ये डब्बा वाला डिग्निटीज है। नेक्स्ट, ये 4th November 2003 at चर्चगेट स्टेशन, टाइम 11:20 up to 11:40 प्रिंस चार्ल्स विजिट टू द डब्बा वाला मुंबई। लंदन के महाराजा प्रिंस चार्ल्स बम्बई में आए थे 4th November 2003 में। ब्रिटिश हाई कमीशन से मुझे 1 महीना पहले फ़ोन आया, जितेंद्र जैन साहब उनके प्रमुख है, उनके पीछे खड़े, उन्होंने फ़ोन पे बात किया, रहे डब्बा वाला भाइयों लंदन का महाराजा बम्बई में आ चुका है, आने वाला है अगले महीने में, तो आपके क्या राय, उसको क्या मिलना है। मेरे माइंड में कैसा सवाल जाग उठा, मुझे पता नहीं चला। मेरे माइंड में आया वो लंदन का राजा है, वो बम्बई में आएंगे, ताज होटल में उतरेंगे, महाराष्ट्र शासन का ऑर्डर करेंगे, पुलिस हमारे पास आएगी, अरे डब्बे वाले भाइयों लंदन का राजा ताज होटल में बैठा है, आपका एक दिन का बिजनेस बंद करो, डब्बा कस्टमर बंद रखो, और लंदन के राजा के मिलने का ऐसा कदापि होगा नहीं। मैंने सामने से बोला, देखो भाई मेरी एक शर्त है, प्रिंस चार्ल्स को हमको ईमेल करना है, मुझे मैसेज देना, जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है। मैंने बोला देखो प्रिंस चार्ल्स को मैसेज दो, आपका स्वागत होगा, आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी, मगर डब्बे वाले की एक शर्त है। बोले क्या, इतना बड़ा लंदन का राजा आपको मिलना आता है और आपके सामने आप शर्त रखना चाहते हो। मैंने सोचा सर सुनो तो सही, कस्टमर हमारे राजा होते, कस्टमर हमारे भगवान होते, कस्टमर इज आवर किंग, नॉट ओनली सिंह इज किंग, ऐसी भावना हम दिल में रखते। प्रिंस चार्ल्स को खाली मैसेज दो, आप बम्बई में जरूर आइए, 5 स्टार होटल में रुकिए, मगर डब्बा वाले जो स्पॉट देंगे, जो टाइम देंगे, वो टाइम पे आपको फुटपाथ पे आके मिलना पड़ेगा, आपका सम्मान भी होगा, हमारा कस्टमर का नेटवर्क भी चालू रहेगा, और 800 डब्बे वाले के मुकादम है, टीम लीडर आपका स्वागत भी करेगा। प्रिंस चार्ल्स ने शर्त मंजूर की। बराबर 11:20 AM चर्चगेट स्टेशन के बाहर 4 नंबर के प्लेटफॉर्म बाहर आए। पहले उन्होंने डब्बा खोलने को कहा, डब्बा कैसा होता है, दाल किस में रखते, चावल किस में रखते, चपाती किस में रखते, भाजी किस में रखते, वो लॉक कैसा किया जाता है। मैडम में कोडिंग के बारे में जानकारी पूछ रहे, आप पढ़े लिखे नहीं, थम्सअप पर्सन है, अनपढ़ लोग है, कोई डिग्री नहीं, इतने 4 लाख टिपिंग का ट्रांजैक्शन आप कैसे करते। मैं हिंदी में उनको जैसे आपको ट्रांसलेट किया, वो जितने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको समझा रहे। लास्ट में एक टिफिन का बकेट होता है हमारा, लोड करने का, उसने एक बकेट उठाकर देखा, एक डब्बे का वेट अगर किलो 1.25 किलो हो सकता है, तो 40 डब्बे का वेट 60, 50 kg हो सकता है। आपका नेक का प्रॉब्लम है क्या, पेट की समस्या है क्या, कमर की प्रॉब्लम है क्या, सब इंक्वायरीज करने के बाद इट इज़ अमेजिंग वर्क इन द वर्ल्ड, ऐसी शाबाश की प्रिंस चार्ल्स ने डब्बा वाला टीम को दी थी। और डब्बे वाले टीम ने प्रिंस चार्ल्स के लिए एक लंच बॉक्स डब्बा दिया था हम लोगों ने, दाल सब्जी चावल नहीं दी थी, ड्राई फ्रूट भर के मैंने दिया था, और एक कंप्यूटर को टोपी भी मैंने दी थी। प्रिंस चार्ल्स के शादी में जब मैं गया था प्रिंस लंदन में, तो बकिंगहैम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स ने जहां अपना कोहिनूर डायमंड रखा है, उसके बाजू में मुंबई डब्बा वाला का लंच बॉक्स डब्बा और कंप्यूटर टोपी उन्होंने आबादित रखी हुई है।
और प्रिंस चार्ल्स के शादी में दुनिया से खाली 3% को निमंत्रण था। मैं और मेरे एक साथी थे, और शायद ट्रांसलेट करने के लिए एलिजाबेथ मैडम को पहले खबर थी प्रिंस चार्ल्स को कि डब्बे वाले इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए उन्हें रॉयल फैमिली के नाते राजस्थान की महारानी गायत्री देवी की बहू पद्मिनी देवी ट्रांसलेट के लिए, इंटरव्यू के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मीडिया के लिए उनको उन्होंने निमंत्रण दिया था। और हमें साथ देने के लिए 8 दिन हम लोग लंदन में, गायत्री देवी हमें वेज कौन सा है, नॉन वेज कौन सा है, न्यूज़पेपर में क्या बोलना है, ट्रांसलेट करने का काम उन्होंने बोल दिया था। ऐसा हम शादी, प्रिंस चार्ल्स की शादी अटेंड करके आ चुके हैं। नेक्स्ट, सम अचीवमेंट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बेस्ट टाइम मैनेजमेंट विद 6 सिग्मा रेटिंग, नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड विद प्लीज बिलीव इट और नॉट, रिसीव्ड ISO 9002। इतने सारे सर्टिफिकेट हमें मिल चुके। भाई कि एप्लीकेशन भी हमने किया नहीं कि एप्लीकेशन लो, ये सर्टिफिकेट हमें दो, ये थोड़ा रिश्वत लो, पैसा लो, ये सर्टिफिकेट डब्बा वाले की टीम को दो। लोग आते एक महीना कैमरा लेके हमारे पीछे दौड़ते, 5 स्टार होटल में रहते, पॉकेट मनी बर्बाद करते, टाइम बर्बाद करते, और फोकट का सर्टिफिकेट भी देके जाते। ये सब सर्टिफिकेट हमें बिना साहस में, आप भी अच्छा नेटवर्क करो, दुनिया आपके पीछे आपके आप दौड़ के आ सकती है। ऐसा हमारा डब्बे वाला का नेटवर्क है। ये ISO सर्टिफिकेट है। इतने क्राउड ट्रेन में हम डब्बे लेके जाते हैं। दिल्ली से एक टीम आई थी शूटिंग करके, उन्होंने दिल्ली में बुलाकर ISO सर्टिफिकेट दिया था कि डब्बे वाले इतने ओवरलोड ट्रेन में कैसे डब्बे लेते, टाइम पे वही ट्रेन से सर्विस करते। नेक्स्ट, ये रिचर्ड ब्रैंसन है। प्रिंस चार्ल्स के बाद रिचर्ड ब्रैंसन बम्बई में आए। 1 महीना उन्होंने रेलवे PRO से सर्वे किया। मुझे डब्बे वाले के साथ सफ़र करने, लगेज कंपार्टमेंट में, पूरे रेलवे पुलिस, पूरे रेलवे PRO 1 महीना पीछे मेरे पीछे भाग रहे थे, कौन सी ट्रेन में, कौन से टाइम में, कहाँ से मैं उसको चढ़ाऊँ ट्रेन में। मैंने बोला देखो, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ मत भेजो, क्योंकि वहाँ बहुत लगेज, ट्रेन को खाली 3 लगेज कंपार्टमेंट होते, और वो लगेज कंपार्टमेंट शूज, चप्पल के, बूट के डब्बे के ऊपर पैर देते तो हमारी भावना ये खराब हो जाती है। इसलिए उनको बोलो दादर तक आधी ट्रेन खाली हो जाती है, आधे डब्बे वाले निकल जाते हैं। उनको बोलो दादर में मैं 11:40 को 10:45 को हमारी ट्रेन पहुँचती है, वहाँ उनको खड़ा करो। बोरो रिचर्ड ब्रैंसन इतना बड़ा लंदन से डब्बा लेके आए थे, हाथ में देखो उन्होंने पकड़ा, हाथ में डब्बे वाले के लिए टी-शर्ट बनवा के लाए थे, रेड कलर के, कंप्यूटर को टोपी पहनी, वर्जिन एटलांटिक वेयरहाउस पॉकेट पे लिखा। हमें पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। रोज बहुत सारे आते विदेशी लोग, रोज शूट करते, चर्चगेट में परेशान करते डब्बे वालों को, उल्टा सुल्टा डब्बा कर देते, कैमरा ऊपर पकड़ते, नीचे डब्बा गिर जाते। हमारे डब्बे वाले गालियाँ भी देते। अच्छे वो अंग्रेजी लोग गालियाँ मराठी में समझते नहीं है, क्योंकि क्यों गालियाँ देते, बहुत टेंशन है। डब्बा गिर जाएगा तो दाल चावल मिक्स होती, ना बॉस खा सकते, शाम को भाभी भी डांटती है, इसलिए परेशान होते। इसलिए वो दादर से चर्चगेट सवाल जवाब करते करते, पुलिस वाले भी थे हमारे साथ, पुलिस वाले टीवी चैनल्स वाले होते तो हम झगड़ा नहीं कर सके। हम चर्चगेट में जब डब्बे उतार रहे थे, पूरे डब्बे वाली टीम, पुलिस वाला, चलो डब्बे वाले भाइयों, आज तुम यही गेट से सब लोग डब्बे वाले एक लाइन से जाएंगे, बाकी पब्लिक के लिए अलग गेट खोल देंगे। रोज़ नहीं करते, मगर उस दिन किया था रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा। और हम लोग गए, हमें पता नहीं, डब्बे वाले धक्का, चलो भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो। पूरी चर्चगेट स्टेशन में पूरे प्रिंट मीडिया, पूरे मीडिया के लोग शूट कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, न्यूज़पेपर वाले थे, टीवी चैनल्स वाले थे, पुलिस वाले थे, डॉग स्क्वाड थे। हम धक्का मार, चलो भाई डब्बा देने में देरी हो रही, जल्दी करो जल्दी करो। मीडिया के लोग कितने होशियार होते, यहाँ भी होंगे शायद। अरे रिचर्ड ब्रैंसन, रिचर्ड, उनको पता था नाम कौन, हमें पता नहीं था कौन रिचर्ड ब्रैंसन है। तब मुझे पता चला कि रिचर्ड ब्रैंसन है शायद। अरे क्यों रिचर्ड ब्रैंसन, क्यों डब्बे वाले के काम में दखल देते हो, उनको डब्बे देने में देरी हो रही है। रिचर्ड ब्रैंसन हाथ जोड़ के बोल रहे थे, मैं डब्बे वाले को कोई टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ डब्बे वाले के साथ 20-25 फोटो निकाल। क्या करेंगे फोटो लेके, कहाँ से आए हो तुम लोग? बोले मैं वर्जिन एटलांटिक एयरवेज का चेयरमैन हूँ, पूरे वर्ल्ड के कंट्री में मेरे बड़े बड़े ऑफिसेस है, ऐसे डब्बे वाले के साथ मैं 20-25 फोटो लेके जाऊंगा। बड़े बड़े कंट्री में मेरे बड़े बड़े ऑफिसेस है, दीवार के साइज बिग साइज फोटो बनाऊंगा। और जहाँ से मेरे स्टाफ रोज एंट्री करते 10 साढ़े 10 बजे, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, काम करो तो बम्बे डब्बे वाले जैसा करो, 6 सिग्मा छोड़ो, 4 सिग्मा तक अपनी एयरवेज लेके जाने की कोशिश करो। ऐसा संदेश देने के लिए रिचर्ड ब्रैंसन हमारे फोटो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑफिस में लगा के रखे हुए। ये टॉप 50 इंडियन पर्सन है। डीएनए पेपर ने सर्वे किया था 2008 में, और टॉप 50 पर्सन है अमिताभ बच्चन, प्रिया फर्स्ट लाइव में रेड स्क्वायर में टोपी के साथ मेरा फोटो लगा दिया है। उनके काबिल में है कि नहीं आज तक मुझे पता नहीं है, मगर टॉप 50 इंडियन डीएनए पेपर ने सर्वे करके मेरा फोटो लगा दिया है। मैं डीएनए पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड, सॉरी,
ये मिठी रिवर को बाढ़ आई थी 26 जुलाई 2005 को। पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी, रेलवे सिस्टम फेल हुई थी, एसी कार फेल हुई थी, 3 फुट पानी रेलवे ट्रैक पे थे, हाईवे पे 3 फुट पानी था। मैं खुद बांद्रा स्टेशन में हम लोग अटक गए थे। 3 फुट पानी में हम लोग साइकिल तो आराम से चल सकती है, साइकिल को ना पेट्रोल टैंक है ना साइलेंसर है, पानी जाने से गाड़ी बंद हो सकती है। हमारी साइकिल चल रही थी, हमारे डब्बे वाले रिटर्न जर्नी के डब्बे 7 बजे तक 3 फुट पानी में डब्बे दे रहे थे। प्रिंस चार्ल्स ने इंटरनेट से लंदन में देखा और उन्होंने देखा कि पूरी बम्बई बंद चुकी हो चुका, मगर मेरे दोस्त 3 फुट पानी में रिटर्न डब्बे की जर्नी डब्बे दे रहे। उन्होंने लेटर लिखा मेरे नाम से, मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा देश भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे डब्बे वालों को बिजनेस सुरक्षा सही ढंग से चलने जैसे शुभेच्छा लेटर प्रिंस चार्ल्स हमारे नाम से लिख सकते हैं, लंदन का राजा, मगर इंडिया का कोई ऐसा नेता अभी तक लेटर लिखा नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य के सौभाग्य आज तक पता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय जनेन्द्र। और जाते जाते एक संदेश भी देना चाहता हूँ, खुदा हो या भगवान हो, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज हमें डब्बे वालों को मत दो जो हमारा बिजनेस बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। साहब बांग्लादेश से है ना, बांग्लादेश में मैं पेप्सी कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए आया था 6 साल पहले बांग्लादेश में। वेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रघुनाथ मेडगेजींनी अतिशय उत्कृष्टपणे आपलं व्यवसाय ते दाखवलं। 5000 लोकांचं मॅनेजमेंट अतिशय डिफिकल्ट, आणखी अनफोर्सिन ते सर्कमस्टन्समध्ये त्याला कंडक्ट करणं डे इन अँड डे आउट 24/7 खरंच हे ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे। एक ब्रँड आयडेंटिटी यांनी निर्माण केलेली आहे इन कलेक्शन अँड डिलिव्हरी ऑफ लंच बॉक्सेस। मी तर गव्हर्नर साहेबांना रेकमेंड करेन की अशा व्यक्तीला रोटरीकडून सर्व्हिस अबाउट सेल्फचं अवॉर्ड आपण रेकमेंड करावं अशी आपल्याला विनंती आहे आणि आपल्या सगळ्या मेंबरच्या थ्रू त्याचा आग्रही आहे।